A goal without proper planning is just a wish. Hello everybody, this is Seer Shalini Ishwani, and as all of us know, now approximately 60 days are left for your exams, and these 60 days can prove to be a game changer for you. So guys, utilize these 60 days in the best possible manner. One thing that I have observed among the students is that till now people have not decided, students haven't decided that which group are they going for, and they're not even sure they're going for single or both the groups. My dear friends, it's high time. Decide which group to go, or you are going for both groups or not. It's high time now. एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद भी हम डिसाइडेड नहीं हैं, अभी श्योर नहीं हैं, बट अब इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, बिकॉज अगर आज हम ये डिसीजन नहीं लेंगे हम कभी फ्यूचर प्लान नहीं कर पाएंगे, और बिना प्लानिंग के हम कुछ नहीं कर सकते. टेक दिस डिसीजन टुडे इटसेल्फ दैट यू आर गोइंग फॉर विच ग्रुप, और यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स, राइट? तो आई होप all of you will take this decision as soon as possible. And once you have taken this decision, abide with it. Stick to it. Right? Once the decision has been taken, take a paper and a pen and start jotting. Start planning. Start planning each and every hour of your day. And then let's see how it works. It will miraculously work if you plan and if you execute your plan. To make a plan executable, it's very important that you make a very realistic plan. Don't be very impractical while making your planning. But while planning, you have to actually take this call that at least 13 to 14 hours you have to study. Because seeing 60 days, 13 to 14 hours of each day study is very, very important. There are many students who take one subject at a time, but I would recommend take 2 subjects at a time right now. This is the time when you have to take 2 subjects, which breaks the monotony as well, and आपका simultaneously 2 subject ready हो जाता है. जब 60 days बचते हैं, this is an assumption कि आपकी सारी classes हो चुकी हैं, आप एक बार एटलीस्ट सारे subjects go through कर चुके हैं, और आपकी offices की examination भी चल रही है. You are at home and 100% dedication सिर्फ पढ़ाई के लिए है और कुछ नहीं. तो 14 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, और निकालने पड़ते हैं इस मोमेंट में. 13 to 14 hours. A little tip how you can plan your studies are कि देखो, मैं आपको कोई स्केड्यूल, एक फिक्स स्केड्यूल नहीं दे सकती, बिकॉज स्केड्यूल सबका बहुत कस्टमाइज्ड होता है. डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग. There are people who are morning risers. There are people who study late till night. तो सबका प्लान डिफरेंट तरीके का होगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. बट छोटा सा एडवाइस और छोटा सा टेक्निक मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, एंड दैट इज, सपोज यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स. आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो. आप ग्रुप 1 से अपना रिविजन शुरू करते हो. गिव फर्स्ट 8 days फॉर FR and ऑडिट, सपोजिंगली फर्स्ट 8 days. नेक्स्ट 8 days for SFM and law. 16 days में आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा. एंड इस कंप्लीशन का मतलब है दिस ग्रुप हैज़ टू बी होलिस्टिकली कंप्लीट. होलिस्टिकली मीन्स योर ऑल दी ऑथर्स रेफरेंस बुक्स जो आप ले रहे हैं, स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट, योर सजेस्टेड, योर प्रीवियस RTPs, एवरीथिंग. होलिस्टिकली यू हैव टू कंप्लीट दिस ग्रुप. 16 दिन के अंदर आपका ग्रुप 1 रिवाइज हो जाएगा, एंड इट इज़ अचीवेबल. ऐसा नहीं है इट्स नॉट अचीवेबल. सेम पैटर्न आप ग्रुप 2 के लिए फॉलो करेंगे. कॉस्टिंग के साथ आप IDT उठा सकते हैं. DT के साथ आप इलेक्टिव सब्जेक्ट उठा सकते हैं. विद कॉस्टिंग आई मीन एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस तरीके से अगेन 16 days में आपका ग्रुप 2 भी हो जाएगा. तो 32 days में आपका एक रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स. अगर आप सिंगल ग्रुप में जाते हैं, इस टाइम को आप डबल कर देंगे, राइट? 32 days में एक रिविजन डन. सेकेंड रिविजन टाइम हाफ हो जाएगा, एंड थर्ड रिविजन टाइम और हाफ हो जाएगा. कैसे होगा? फर्स्ट रिविजन 32 days, सेकेंड रिविजन डिवाइड दिस 32 by 2, 16 days, एंड थर्ड रिविजन 16 divided by 2, 8 दिन में रिविजन. हाउ मच टाइम? 56 days. 3 revisions are still possible in these 56 days, and 4 days for your contingencies. Please guys,
ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप ऐसा प्लान बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव योर गोल्स. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. Impossible itself says, I am possible. And you guys are going to make the things possible. With the proper planning, proper execution, everything is possible. Right? So, take the decision today itself. And एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि कई लोगों को ये होता है कि आप कंपेयर करते हो, यार वो रात में पढ़ता है, वो सुबह पढ़. आपको अपना बॉडी क्लॉक समझना है. आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? इफ़ येस, लाइक एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग पर्सन थी. आई यूज टू गेट अप एट 4 एंड उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई शुरू करती थी. 4 से 7 मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा. आई यूज टू मेक द डिविजन ऑफ द सब्जेक्ट्स. मैं FR में, जैसे मैं FR को ही एक दिन में 3 स्लॉट्स में पढ़ती थी. एक स्लॉट में मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ती थी, एक स्लॉट में मैं बड़े टॉपिक्स जैसे कंसोलिडेशन एक बड़ा टॉपिक था उसको अलग से रखती थी, और एक स्लॉट में मैं मिसलेनियस रखती थी. तो 2 आवर्स के मेरे 3 स्लॉट्स FR के तो होते थे. तो सबका अपना एक तरीका होता है. आप एक साथ नहीं एक चीज़ कर सकते. एक ही सब चीज़ पढ़ते रहोगे तो कई बार होता है यू फील बोरिंग, यू फील लेथार्जिक. बट इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो अपने टाइम को, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. राइट? तो आपको अपना कस्टमाइज्ड प्लान, अपना कस्टमाइज्ड एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक अ डिसीजन कि हमें करना क्या है, सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देना है. राइट? प्लान बनाइए. प्लान ऐसा बनाइए कि जो अचीवेबल हो. राइट? और अपना कैलिबर सिर्फ आप जानते हो. प्लान बनाते टाइम जब आप अपना ये स्टडी शेड्यूल बना रहे हो उस टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि बीच बीच में ब्रेक्स देने हैं. गाइज, अ मशीन ऑल्सो नीड्स रिपेयर. वी आर ह्यूमन्स, वी ऑल्सो नीड ब्रेक्स इन बिटवीन. वी नीड इंटरवल्स इन बिटवीन. तो बीच बीच में ब्रेक ज़रूर डालने हैं. राइट? फॉर योर लेजर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 13 से 14 घंटे पढ़ना है. ऑफकोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट. साथ में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज taking healthy diet, little bit of exercise that gives you, mental peace as well, and that gives you physical fitness as well. If you're physically fit, you're mentally fit. And proper sleep, it's a must. Proper sleep is a must. I am not saying to avoid social media completely. I'm not saying that. But उसके लिए भी फिक्स टाइम रखिए. पूरा दिन आप सोशल मीडिया एंटरटेनर नहीं कर सकते. इट्स हाई टाइम. 60 डेज थोड़ा कम यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो कुछ नहीं होगा. राइट? डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना चाहिए इस टाइम पर. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, ट्राई टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हाइल यू आर स्टडीइंग. जो लेजर टाइम आपका है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसमें आप जो मर्जी करो, जो मर्जी करो. वट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट. बट जितनी देर पढ़ेंगे फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे और अपने प्लान को फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे. विद दिस आई विश यू गुड लक. टेक वाइज डिसीजन, मेक अ गुड प्लान एंड बी सक्सेसफुल. बाय बाय. थैंक यू.